Hello students, how are you all? I hope you all are studying, playing and are safe at your sweet home. I welcome you all into Galaxy of Computers. I think electronic learning helping you people a lot. Stepwise thinking means how to plan a number of steps before achieving your goals. Children, you have to do lots of tasks into your day-to-day life like eating, doing online work, going to the park, playing with your friends, and finally keeping your home clean. These all tasks require reasoning followed by problem solving. Reasoning means act of thinking about something in a logical manner. For example, solving a math sum or a science question. Problem solving means completing a task within the given condition which requires step-by-step procedure. Dividing a problem into number of steps, then achieve your goal is known as problem solving. It includes how to solve a problem, when to solve a problem, where to solve a problem, and who will solve the problem. Suppose you have to arrange a party for birthday. Oh, feeling excited. Lots of children are coming to your birthday party. Firstly, make a list of invitees who is coming to your party. Then inform the invitees through phone, call them and invite them. Then make proper sitting and eating arrangements like who will sit where, proper chair, table, etc. Then who will eat pizza, burger, chow mein, etc. So this is their eating arrangements. Now make arrangements for their entertainment also like music system, songs, games. Now greet the guest with love and warmth like thank you for coming, nice to meet you, etc. These greetings help to build your relationship strong. At last, enjoy your birthday party. Hey, yes, you can enjoy the birthday party if you are following each and every step. The results are satisfactory, and if not, the results are not satisfactory. You may feel sad. So to keep yourself happy, follow the steps properly for your birthday party which you have planned. Stepwise thinking helps in converting complicated tough tasks into simple ones. So divide your tough tasks into the simpler one. Now reasoning, planning and stepwise thinking before doing any small work or the big work is very important. It helps you to achieve your target step by step and solving your complex problem into these small ones. Step requires to brush your teeth, your shiny teeth. So for that, toothbrush, rinse brush, then apply toothpaste, start brushing your teeth, clean the brush, rinse your mouth, and here are your shiny teeth. Otherwise, doctor is there for your help. You better understand that. Steps 2. Pack your school bag. Nowadays, we are not going to school, but in future, when you will go to the school, apply this method to pack your bag. Open the bag, then check out your school diary, then see the timetable, go to the bookshelf and take out the notebooks and books required for the day. Then keep them in your bag and close it. Here your bag is ready. Now steps to make a sandwich. Yes, yummy sandwich. I know you are feeling mouth-watering. So for this, you need to follow following steps like take the bread, apply butter, then vegetables, then sauce and your
sandwich is ready. So with this, you may solve very complex problem into the smaller ones. Step-wise thinking helps us to follow the steps and helps to convert big problems into the smaller ones. It is a systematical way to solve our all day-to-day life problem so that we can achieve our goal. Stepwise thinking means to do any activity in a sequence of steps by following a sequence of steps. So I already told you some case like in daily life how you can perform an activity by following a sequence of steps. तो स्टेप वाइज थिंकिंग में क्या है, आप कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हो उनकी कुछ स्टेप्स होती है जिन्हें आप परफॉर्म करते हो इन अ सीक्वेंस कि फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है, सेकंड स्टेप आपकी क्या है. जैसे आपकी बुक में कुछ केस भी दे हुए हैं, लाइक है कि आपको एक फ्रेंड है उसे कॉल करनी है या क्या करना है, स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है. केस 3 स्विच ऑन द कंप्यूटर. सो फर्स्ट स्टेप, second switch on the power switch, second step switch on the UPS, third step switch on the CPU central process unit, step 4 switch on the monitor. So these 4 steps are required to switch on a computer. Like that डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी हैं उन्हें हम परफॉर्म करते हैं स्टेप वाइज. ये आपकी स्टेप्स शो भी हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है. कि फर्स्ट स्टेप क्या थी, स्विच ऑन द पावर स्विच, ये पावर स्विच स्विच ऑन कर दिया. सेकंड है आपकी सेकंड स्टेप की स्विच ऑन द यूपीएस, ये सेकंड स्टेप होनी चाहिए. यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, बताया था मैंने, ये सेकंड स्टेप होनी चाहिए. देन थर्ड स्टेप स्विच ऑन द सीपीयू एंड फोर्थ स्टेप स्विच ऑन द मॉनिटर. सो एक कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो की हैं. सो स्टेप वाइज थिंकिंग में क्या है, जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी वी नीड टू फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. तो स्टेप को सीक्वेंस में ही हमें फॉलो करना है. आप फर्स्ट स्टेप को पहले बाद में परफॉर्म नहीं कर सकते, फोर्थ स्टेप को पहले परफॉर्म नहीं कर सकते. लाइक जैसे फोर्थ स्टेप क्या है आपका, स्विच ऑन द मॉनिटर. अगर आप फर्स्ट स्टेप पर मॉनिटर स्विच ऑन करने की कोशिश करते हो तो स्विच ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पावर स्विच ऑन तो हमने किया ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म नहीं की है. हम डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, मॉनिटर स्विच ऑन कर रहे हैं. सो वी कांट स्विच ऑन द मॉनिटर बिफोर दिस स्टेप. स्विच पावर स्विच को ऑन किए बिना मॉनिटर हमारा स्विच ऑन नहीं होगा. ओके, सो लाइक दैट आपकी सेकंड स्टेप को हम फर्स्ट स्टेप में नहीं कर सकते हैं. सेकंड स्टेप आपकी स्विच ऑन द यूपीएस, यू कांट स्विच ऑन द यूपीएस बिफोर दिस स्टेप. So like that we all need to do all steps in a sequence. Next topic is algorithm and flowchart. Computer is a machine. To make it work, it has to be given instruction called program. कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है. उसमें अगर हमें उस कंप्यूटर से मशीन से वर्क कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है. देन हाउ टू वर्क, और उन इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम. You can say that a program is set of instructions given to a computer to solve a particular problem. तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम एक क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम में होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट पेज. अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम. और जो सीक्वेंस है, उन इंस्ट्रक्शन की जो सीक्वेंस है, एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय थिंकिंग. सीक्वेंस में हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो वो जो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शन की उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम. एल्गोरिथम आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग. फ्लो चार्ट इज ए टूल यूज टू हेल्प टू राइट प्रोग्राम लॉजिक. द एल्गोरिथम, और उसके बाद क्या है, एल्गोरिथम क्या है, एक फंडामेंटल पार्ट है कंप्यूटिंग का. कुछ स्टेप्स हैं किसमें, सीक्वेंस में. और फ्लो चार्ट क्या है, एक टूल्स हैं जो उस प्रोग्राम को राइट करने के लिए यूज़ होते हैं, उस एल्गोरिथम को प्रॉपरली शो कराने के लिए इन ए ग्रामेटिकल वे, इन ए डायग्राम वे.
However, flowcharts work well for small. In this chapter, you will learn about algorithm and flowchart in detail. Algorithm. An algorithm is a procedure to solve a particular problem written in proper sequence in simple English statements. Algorithm क्या है? एक प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो नॉर्मली सीक्वेंस में लिखा होता है एक इंग्लिश स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं किसमें? सीक्वेंस में। उन स्टेप्स का जो प्रोसीजर है फुल कि वो कैसे उन्हें फॉलो करना है, और वो होते हैं हमारी एल्गोरिदम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एल्गोरिदम राइट करने के? वेल ऑर्डर, द स्टेप्स आर इन ए क्लियर ऑर्डर, मीन्स फर्स्ट स्टेप फर्स्ट पे, फोर्थ स्टेप फोर्थ पे ही, तो वो वेल ऑर्डर होने चाहिए। सेकेंड, unambiguous, the operation described are understood by a computing agent without further simplification। जो हमने एल्गोरिदम राइट की है वो जो हमारा एजेंट है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ आना चाहिए। थर्ड, इफेक्टिवली कंप्यूटेबल, द कंप्यूटिंग एजेंट कैन एक्चुअली कैरी आउट द ऑपरेशन, और वो स्टेप्स इजीली परफॉर्म हो जानी चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। मेथड फॉर डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, हम एक एल्गोरिदम कैसे डेवलप कर सकते हैं? फर्स्ट, डिफाइन द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। स्टेट द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सोल्व इन अ क्लियर एंड कंसाइज टर्म, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है पहले हम उसे क्लियरली अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे कि क्या हमें प्रॉब्लम है जिनसे हमें सोल्व कराना है। सेकंड, लिस्ट द इनपुट्स, अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या इनपुट की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन नीडेड टू सोल्व द प्रॉब्लम, कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एंड द आउटपुट्स व्हाट द एल्गोरिदम विल प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट, और जब हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वो होता है हमारा आउटपुट। थर्ड, डिस्क्राइब द स्टेप्स needed to convert or manipulate this input to produce the output, और अब उस जो हमें इनपुट है उसे आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेप्स है वो क्लियरली डिस्क्राइब होनी चाहिए। ठीक है, कि हम उसे कैसे फॉलो करेंगे, तो वो जो स्टेप्स हैं वो क्लियरली डिस्क्राइब होनी चाहिए। डिस्क्राइब हम करते हैं उनको। Start at a high level first and keep refining the steps until they are effectively computable operations। और हम फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक प्रॉपरली उन्हें उन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते, प्रॉपरली राइट करते हैं ताकि वो इजीली कंप्यूटेबल हो, मीन्स वो इजीली प्रोसेस हो सके और इजीली जबकि आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट, टेस्ट द एल्गोरिदम, अब जो हमें एल्गोरिदम राइट किए उसे टेस्ट करेंगे। चूज डेटा सेट्स एंड वेरीफाई दैट योर एल्गोरिदम वर्क्स, और हम उस डेटा पे उसे टेस्ट करके देखेंगे कि एल्गोरिदम में जो हमने स्टेप्स राइट की हैं वो प्रॉपरली वर्क करती भी हैं या नहीं। एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम के लिए हमारा एक एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम 1, टू ऐड न्यू नंबर्स सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है। अब उसका सॉल्यूशन है स्टेप 1 स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया। स्टेप 2, टेक 2 नंबर्स, जिन नंबर्स को हमें ऐड करना है वो नंबर हम डालेंगे। लाइक यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर हमने 2 नंबर डाले 2 and 5। ऐड द 2 नंबर्स, अब हमने उसे ऐड किया और प्रिंट द रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है हमारा 7 एंड देन स्टॉप, हमारी एल्गोरिदम यहाँ स्टॉप हो गई। तो ये 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमारी कितनी स्टेप्स रिक्वायर्ड है? 5 स्टेप्स। फर्स्ट सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, 2 नंबर डाले, जो जिन नंबर को हमें ऐड करना है उन्हें ऐड किया, जो रिजल्ट था उसे प्रिंट कर दिया एंड देन स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट पेज। दिस इज एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स। प्रॉब्लम 2, टू फाइंड ग्रेटर देन 2 नंबर्स, अब 2 नंबर्स हैं उनमें से जो ग्रेटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप सेम स्टार्ट करिए हमने एल्गोरिदम। स्टेप 2, टेक 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर
Step 3. Compare these two numbers. If A greater than B, then go to step 4. Else go to step 6. हमने कंपेयर किया, दोनों नंबर्स को कंपेयर किया कैसे, 6 ग्रेटर देन 8 हमने कंपेयर किया। अब क्या किया, क्या है इन्होंने, A ग्रेटर देन B, ये हमारा A है और ये B नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। A ग्रेटर देन B, अगर A B से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, स्टेप 4 पर जाना है। और बट यहाँ पे क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 8, नो 6 क्या है, लेस देन 8, तो हम स्टेप 4 पर नहीं जाएंगे। एल्स अगर A B से ग्रेटर नहीं है तो हमें कहाँ जाना है, स्टेप 6 पर। तो अब स्टेप 6 पर हम डायरेक्ट जाएंगे, प्रिंट B इज़ ग्रेटर। अब हमने B क्या है हमारा 8, तो हम 8 को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। एंड स्टेप 7 गो टू 5, 5 क्या है, स्टॉप। और अब हमारी जो एल्गोरिथम है स्टॉप हो गई। हम एग्जांपल लेते हैं, कोई और दो नंबर लेते हैं, लाइक 9 A और B पे हम डालते हैं 5 और इन्हें हम कंपेयर करते हैं। अगर हम फिर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इज स्टार्ट, देन टेक टू नंबर्स 9 and 5, A and B. स्टेप 3 कंपेयर दिस टू नंबर्स, इज A ग्रेटर देन B। इस बार हमारा क्या है, A B से ग्रेटर है, तो हमें कौन सी स्टेप पर जाना है, देन गो टू स्टेप 4। अब हम स्टेप 4 पर आ जाएंगे, प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हमारा 9 है, हमने 9 प्रिंट कर दिया। देन स्टेप 5 स्टॉप। ओके, अगर हमारा A ग्रेटर है तो हम स्टेप 4 और 5 को फॉलो करेंगे, और अगर हमारा B ग्रेटर है तो हम किसे फॉलो करेंगे, स्टेप 6, 7 एंड 5 को। ओके स्टूडेंट्स, so like that we need to follow a sequence of steps to solve a problem. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो स्टेप्स है उन्हें सीक्वेंस में फॉलो करना होता है। उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को एल्गोरिथम। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट। फॉर टुडे इट इज इनफ अबाउट फ्लो चार्ट, आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, stay home, stay safe. Your today's homework is to read this chapter from page number 96 to 98. Till that, यहाँ तक आपको रीड करना है, and to learn 2 questions of chapter 6. Thank you.